السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے یقین ہے کہ زبردست ہوں گے۔ بہت اچھی آپ کی ایگزام کی تیاری چل رہی ہوگی۔ اب تک ہمارا جو ریویژن کا جو سیریز ہے وہ چیپٹر نمبر 1 سے لے کر کے چیپٹر نمبر 9 تک کلیئر ہو چکا ہے، یعنی تمام چیپٹرز کے تمام سبق کے ہم لوگوں نے مختصر سوالات کو حل کر لیا ہے۔ آج کے ویڈیو میں چیپٹر نمبر 10 اور چیپٹر نمبر 11 اور چیپٹر نمبر 12 یعنی 10، 11 اور 12 کے مختصر سوالات یعنی شارٹ ٹائپ آنسرز کو آج ہم لوگ حل کریں گے اور اس کو یاد کریں گے، اور جو نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ سب سے پہلا سوال ہے آپ کا، لطف الرحمن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ پروفیسر لطف الرحمن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو پروفیسر لطف الرحمن کی پیدائش چھپرا ضلع بنیا پور میں ہوئی۔ کہاں پہ ہوئی؟ چھپرا ضلع بنیا پور میں، یاد رکھیے گا۔ لیکن ان کا آبائی وطن جو ہے وہ دربھنگہ ہے، ان کا ننیحال جو ہے وہ بنیا پور ایک گاؤں کا نام ہے چھپرا ضلع میں، وہاں ان کا ننیحال ہے، وہیں پہ ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ سوال نمبر 2، لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور ایم ایل اے رہے؟ لطف الرحمن، جواب کیا ہے آپ کا؟ لطف الرحمن راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD سرکار میں بینہ درجہ کے، بین کا مطلب ہوتا ہے بیچ، مڈل درجہ کے وزیر بھی ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 3، لطف الرحمن کی کسی 2 کتابوں کے نام لکھیے۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ لطف الرحمن کے کسی 2 کتابوں کے نام لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی ایک کتاب کا جو نام ہے اس میں وہ ایک کتاب ہے بوسہ نم۔ بوسہ نم، نم کا معنی ہوتا ہے بھیگا، بوسہ کا مطلب کسی کو مطلب پیار سے چٹکارنا، وہ مجموعہ غزل ہے، مجموعہ غزل کا مجموعہ ہے بوسہ نم۔ ایک کتاب ہے بوسہ نم جو غزل کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہے صنم آشنا۔ صنم آشنا جو ہے مجموعہ نظم ہے، نظم کا مجموعہ ہے صنم آشنا۔ اگر سوال میں بن جائے کہ آبجیکٹیو کوشچن میں کہ بوسہ نم مندرجہ ذیل میں سے کیا ہے، مجموعہ غزل، مجموعہ نظم، مجموعہ قصیدہ مرثیہ وغیرہ، تو آپ کو مجموعہ غزل اسی لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ بوسہ نم جو ہے وہ مجموعہ غزل ہے اور صنم آشنا مجموعہ نظم ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، آغا حشر کے کسی ایک ڈرامہ کا نام لکھیے۔ اب یہاں پہ آغا حشر کاشمیری کا نام کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ لطف الرحمن صاحب کی جو آپ کے نصاب میں جو شامل ہے ان کا جو مضمون، وہ مضمون کیا ہے؟ اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کے بارے میں ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ ایک سوال بنا کہ آغا حشر کے کسی ایک ڈرامہ کا نام لکھیے۔ تو میں نے یہاں پہ 2 ڈرامے کا نام لکھا ہے، آپ کو اگر ایک بھی یاد ہے تو کوشچن آپ کا جواب جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ خوبصورت بلا ایک ڈرامہ کا نام ہے اور یہودی لڑکی ایک ڈرامے کا نام ہے، یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 5، مضمون نگاری کی مختصر تعریف لکھیے۔ مضمون نگاری کی مختصر تعریف آپ کو بتانا ہے بہت شارٹ میں۔ تو مضمون نگاری جو ہے ایک نثری صنف ہے۔ کیا ہے؟ ایک نثری صنف ہے۔ نثری کو پروز بھی کہتے ہیں، پروز یعنی کہانیاں جو لکھی جاتی ہے اس کو نثری صنف کہا جاتا ہے۔ صنف کا مطلب فن، صنف ہے جس میں کسی موضوع پر منطقی، معلوماتی یا ادبی انداز میں خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، اسے مضمون کہتے ہیں۔ کیا؟ کسی موضوع پر، یاد رکھیے کہ جیسے نظم، جیسے شعر میں جیسے نظم ہے نا، نظم، تو نظم کو کوئی خاص موضوع ضرور ہوتا ہے، جیسے ماں پہ ہے، بھارت پہ ہے، ہمارا آئین پہ ہے یا ہندوستان پہ ہے۔ تو یہ تمام جو نظم ہے وہ کسی نہ کسی ٹاپک پہ ہیں، کسی نہ کسی موضوع پہ ہیں۔ تو اسی طریقے جو مضمون ہوتا ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی خاص موضوع ضرور ہوتا ہے، اس میں قصہ و کہانیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں منطقی معلومات ہو سکتی ہیں، معلوماتی ہو سکتی ہے، یا منطقی کا مطلب کہ ایسا فوق الفطری مناظر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی حقیقت کو لے کر کے اس کا ایک فوق الفطرت عناصر، ایسا امیجینیشن تیار کر دینا کہ منطقی ہو، یا ادبی انداز میں، یا مطلب ثقافت کے لیے یا کسی بھی طریقے سے مضمون نگاری کے بارے میں بتانا۔ تو ان کے خیالات، اپنی فیلنگز کا اظہار کیا جاتا ہے، اسے ہی مضمون نگار کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں،
लुत्फ़ुर रहमान की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले आपको लिखने को कहा जाएगा। तो लुत्फ़ुर रहमान मैंने यहाँ पे लिखा है, गौर से पढ़िए और इसको याद भी कर लीजिए। अगर आपके पास कॉपी रखी है सामने तो इसको लिख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। लुत्फ़ुर रहमान एक मारूफ मुसन्निफ़, मारूफ का मतलब फेमस, मुसन्निफ़ का मतलब राइटर, मुसन्निफ़ सियासतदान, सियासतदान का मतलब पॉलिटिशियन, और तालीमी माहिर थे, यानी शिक्षा में उत्तीर्ण थे, माहिर थे वो। क्या थे? लुत्फ़ुर रहमान एक मारूफ मुसन्निफ़, सियासतदान और तालीमी माहिर थे। अब दूसरा सेंटेंस है, उनकी पैदाइश जो है 1941 में छपरा में हुई। कब हुई है? 1941 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको याद रखिएगा, 1941। तीसरा सेंटेंस है, तीसरा जुमला है, उन्होंने तालीम व सियासत, यानी शिक्षा और शास्त्र, शिक्षा और शास्त्र दोनों को, यानी सियासत को भी, शासन को भी उन्होंने अपना सियासत के मैदान में अहम किरदार, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। महत्वपूर्ण भूमिका किस में अदा किया? तालीम में भी अदा किया और सियासत में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। चौथा जुमला देखिए, वो मुत्तहिदा राष्ट्रीय जनता दल के सरगर्म रुकन थे। और रुकन का मतलब होता है जो पार्टिसिपेट होते हैं ना, उसको रुकन कहा जाता है। तो मुत्तहिदा राष्ट्रीय यानी जो राष्ट्रीय जनता दल है, यानी आरजेडी जो एक समूह है, ग्रुप है, मुत्तहिदा का मतलब समूह, एक ग्रुप के जो सरगर्म यानी एक्टिव, सरगर्म का मतलब एक्टिव, एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, यानी सिर्फ पार्टिसिपेंट्स होना अलग चीज़ है, एक्टिव होना अलग चीज़ है, तो एक्टिव थे वो, इसीलिए उनको वज़ीर भी बनाया गया था। उनकी तहरीरी तालीमी समाज, उनकी तहरीरें जो हैं, उनकी जो राइटिंग है, यानी उनका जो तख्लीक है, मतलब जो वो लिखते थे, वो जो लेख था उनका, वो लेख जो है वो किन चीज़ों पर होता था? तालीमी होता था, समाज को सुधारने के लिए होता था, समाजी मौज़ूआत, यानी समाज और तालीम को लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते थे। चलिए 5 जुमला क्लियर हो गया। अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। आज हम लोग 3 चैप्टर को क्लियर करेंगे। सवाल नंबर 7, तनकीद के बारे में 5 जुमले लिखिए। तनकीद क्या है? तनकीद अदबियात का एक अहम शोबा है। शोबा का मतलब होता है डिपार्टमेंट, पहलू। अदब की जमा क्या है? अदबियात। अदब की जमा है अदबियात। अदब की जमा क्या है? अदबियात। अदब बोलते हैं साहित्य को। किसको? साहित्य को अदब बोला जाता है। तो अदब की जमा है वो अदबियात का एक शोबा है। शोबा का मतलब डिपार्टमेंट है, एक पार्ट है जिसमें किसी की तख्लीक का जायज़ा लिया जाता है। तख्लीक का मतलब कि किसी ने कोई चीज़ लिखा है, उसका जायज़ा लेना, उसको कसौटी में तौलना, उसको कसौटी में तौलना, फ़न की कसौटी में। यानी जैसे मान लीजिए कोई शेर कहा है तो शेर वज़न में है या नहीं, शेर बहर में है या नहीं, शेर सही है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कोई बात अगर कही गई है तो उसकी अच्छा तरीक़ा क्या होना चाहिए, यानी क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलोचक होते हैं। तनकीदी अदबियात जो है मतलब आलोचक होते हैं वो लोग। किसी भी आलोचक मतलब कोई भी चीज़ है उसको वो आलोचक करके उसमें बयान करते हैं। इसके बाद उसके ज़रिए अदबी खूबियों को, यानी साहित्य की जो खूबियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं और ख़ामियों को और जो गलतियाँ हैं उसको निशानदेही करते हैं। यानी अगर कोई शेर लिखा है तो उसमें जो अच्छाई है और जो बुराई है ये भी तनकीद के माध्यम से बताया जाता है। किसके माध्यम से? तनकीद के माध्यम से। अब तीसरा जुमला देखिए, तनकीद तख्लीकी अमल को बेहतर बनाने में मदद करती है। यानी याद रखिएगा, जब कोई काम आप कर रहे होते हैं तो टीचर आपको क्या करते हैं? तनकीद करते हैं। क्या करते हैं? तनकीद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर बेहतरी आए। इसका ये मतलब नहीं कि आपको वो बुरा दिखाना चाहते हैं, आपके बेहतरी आने के लिए, आपके अंदर बेहतरी आने के लिए वो आपको बेहतर बनाने के लिए मदद करता है। कौन? वो तनकीद। चौथा जुमला देखिए, अदबी तनकीद में हम अदब का जायज़ा हकीकत पसंदी और गहरे तज्ज़िये के साथ लेते हैं। किसके साथ लेते हैं? गहरे तज्ज़िये के साथ लेते हैं। मारूफ नक्कादों में, यानी फेमस क्रिटिसाइज़र जो होते हैं, फेमस आलोचक में से हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, मोहम्मद हसन अशकरी शामिल है। ये तमाम जो हैं वो कौन है? तनकीद निगार हैं। क्या हैं? तनकीद निगार। तनकीद निगार यानी आलोचक। अब सवाल नंबर 8,
ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़ लिखना है। ड्रामा जो है, जैसे आपको मैंने तनक़ीद बताया कि तनक़ीद में क्या होता है, किसी की बुराई निकाली जाती है, किसी की अच्छाई निकाली जाती है, किस में? उसकी तख्लीक़ में, उसकी तख्लीक़ में। लेकिन ड्रामा जो है वो अलग है, ये नसरी सिन्फ है, दोनों प्रोज़ ही में से हैं, कहानियाँ हैं दोनों, लेकिन उसका जो पेश करने का तरीक़ा है वो अलग है। ड्रामा एक अदबी सिन्फ है। क्या है? अदबी सिन्फ है जो मकालमात, मकालमात का मतलब आपसी गुफ्तगू, आपसी बातचीत, आपसी बातचीत, बातचीत, कम्युनिकेशन। मकालमात को इंग्लिश में आप समझिए कम्युनिकेशन। और किरदारों यानी कैरेक्टर, कैरेक्टरों के ज़रिए, यानी मकालमात और किरदारों यानी आपसी बातचीत और कैरेक्टर्स के ज़रिए किसी कहानी को स्टेज, कहाँ पर? स्टेज या पर्दे पर पेश करता है। कौन? ड्रामा। जैसे पुराने ज़माने में ड्रामा लिखा जाता था, फिर उस ड्रामे को प्रस्तुत किया जाता था। जैसे मान लेते हैं कि राम लखन की कहानी है, राम लखन की कहानी। राम लखन की कहानी का मतलब कि ये एक ड्रामा था। उस ड्रामे को, जैसे स्ट्रीट में कोई ड्रामा होता है, कोई जादूगर बनता है, कोई इस तरीके से, अब उसी चीज़ को, यानी दो लोगों की बातचीत को सामने पेश करके, एक्टिंग करके दिखाना ड्रामा होता है। जैसे मूवीज़ वगैरह बनती है, तो मकालमात को आसान लफ्ज़ों में आप डायलॉग भी बोल सकते हैं। सवाल नंबर 9, आगा हसर काश्मीरी की ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखना है। आगा हसर काश्मीरी के ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखना है। अब याद रखिए, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान जो थे ये मज़मून निगार थे, लेकिन मज़मून लिखा था किन के ऊपर? आगा हसन काश्मीरी के ऊपर। और आगा हसन काश्मीरी के ऊपर लिखा था, इसीलिए यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है कि आगा हसन काश्मीरी की ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखें। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा विलियम शेक्सपियर को, तो विलियम शेक्सपियर तो थे बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। क्या थे वो? ड्रामेटिस्ट थे। ड्रामेटिस्ट का मतलब ड्रामा निगार थे, यानी जो वो कहानियाँ लिखते थे वो स्टेज वाले कहानी लिखते थे, यानी उसको एक्ट करके दिखाना होता था। लोग एक्टर होते थे, उनकी कहानियों को सामने पेश करते थे, तो इसीलिए उनका नाम है। वो 18वीं शताब्दी में से एलिज़ाबेथन एज के ज़माने में। लेकिन ये इंग्लिश की बात हो गई। और उर्दू में आगा हसर काश्मीरी जो हैं वो मशहूर ड्रामा निगार थे। क्या थे? मशहूर, यानी फेमस ड्रामा निगार थे। उन्हें शेक्सपियर ऑफ द उर्दू कहा जाता है, यानी उर्दू का शेक्सपियर किनको कहा जाता है? आगा हसर काश्मीरी को। उनके ड्रामे समाजी यानी सामाजिक और तारीख़ी यानी हिस्टोरिक मौज़ूआत पर मबनी होते हैं। मबनी होने का मतलब निर्धारित होते हैं। किस पर? समाजी और तारीख़ी। चौथा जुमला देखिए, 5 जुमले लिखना है ना, चौथा जुमला देखिए। उनके मशहूर ड्रामों में मौर्रिखा, मौर्रिखा का मतलब तारीख़, मौर्रिखा जो है एक ड्रामे का नाम है। और शहीद नाज, ख्वाब हस्ती, ये तमाम क्या है? इनकी ड्रामा के नाम हैं जो शामिल हैं। मशहूर ड्रामों में से मौर्रिखा है और शहीद नाज है, ख्वाब हस्ती है, ये तमाम ड्रामा है किनका? आगा हसर काश्मीरी का। लास्ट जुमला है, उनके ड्रामों में मकालमे की चमक और जज्बाती गहराई रूनुमा होते हैं, यानी वो जो डायलॉग लिखते थे उन डायलॉग में एक अलग ही चमक होती थी। जैसे कोई भी डायलॉग जब फिल्मों में बोला जाता है तो ऐसा डायलॉग होता है जैसे वो जो सामने वाला है, जो नाज़रीन है, जो देख रहे हैं उसको, उस ड्रामा को, उसको वो याद हो जाए। जैसे मतलब बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं, जैसे सिमरन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसे धड़कन मूवी के जो वो सारे डायलॉग हैं बच्चों को दिमाग में याद है। क्यों? क्योंकि उसमें जो डायलॉग, जो मकालमा है, वो उसकी चमक, उसमें रवानगी, उसमें अच्छाई की वजह से। जब एक डायलॉग है शाहरुख खान का कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो उसका क्या मतलब है कि वो एक उसमें चमक है, उसको बोल के एक मज़ा आता है। तो यही मकालमा है। जो लिखने वाले होते हैं वो मकालमा निगार होते हैं, और उसकी चमक और उसकी जज्बाती गहराई, जैसे जो मैंने अभी एक सेंटेंस बोला शाहरुख खान का, उस सेंटेंस में शाहरुख खान की जो जज्बात हैं, उसकी जो उस लफ्ज़ की जो गहराई है, वो सामने रूनुमा हो जाते हैं। नुमाया का मतलब ज़ाहिर हो जाना, सामने दिख जाना। चलिए, अब यहाँ से आपका शुरू होता है 10वां चैप्टर।
10वां चैप्टर जो है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश करना है आपको, जो आपका है आर्यभट्ट और त्रिगना, एक जगह का नाम है त्रिगना, वो जो चैप्टर है आपका उसी चैप्टर में से सवालात हैं ये। सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। किसके दरमियान आ जाए? सूरज और चांद ज़मीन और सूरज के बीच में जब आ जाता है तो चांद सूरज ग्रहण हो जाता है, जिससे सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने से रुक जाती है। सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने से रुक जाती है। चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, जिसके बाइस ज़मीन का साया चांद पर पड़ जाता है और चांद जुज़वी का मतलब पार्ट या मुकम्मल, यानी उसका कोई पार्ट या कोई हिस्सा या मुकम्मल तौर पर तारीक यानी छुप जाता है, अंधेरा हो जाता है। जो मतलब दिन है मान लेते हैं, तो सूरज अगर ग्रहण लग गया तो उस वक्त के लिए वो रात हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सन्नाटा, एकदम रात का माहौल हो जाएगा। सवाल नंबर 2, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पर रोशनी डालिए। आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पर रोशनी डालना है। तो आर्यभट्ट की पैदाइश 1776 ईस्वी में भारत के रियासत बिहार के इलाका खगोल, नज़दीकी पटना, यानी पटना के नज़दीक एक जगह का नाम है खगोल में हुई थी। वो एक मशहूर माहिर फल्कियात, फलक आसमान को कहते हैं। किसको कहते हैं? आसमान। इसकी जमा है अफलाक। लेकिन याद रखिए, मैं जमा इसलिए बता रहा हूँ कि इसी बहाने आपका वाहिद जमा वाला जो मामलात हैं वो क्लियर हो जाएं। फलकियात यानी फलक और अफलाक के जो मतलब अफलाक का जो इल्म है ना, इसका जो नॉलेज है, इसके जानने को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन और एनिमल्स के बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, तो वो बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना। तो उसी तरीके से फ़लक यानी आसमान का जो इल्म होता है उसको उर्दू में फ़लकियात कहते हैं। और इल्म मैथ, रियाजी जो है वो मैथ को बोला जाता है। तो फ़लकियात और रियाजी दान थे। सवाल नंबर 3, त्रिगना के महल वक़ू पर 5 जुमले लिखना है। त्रिगना के महल वक़ू पर मतलब वहाँ जो उपस्थित है, वक़ू का मतलब होता है उपस्थित। त्रिगना बिहार के शहर पटना के करीब वाक़ है। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर जॉन आर्यभट्ट पैदा हुए थे। तीसरा सेंटेंस है त्रिगना का इलाका तारीख़ी और सकाफ़ती लिहाज से अहम है, यानी तारीख़ से जुड़ा इसलिए है कि आर्यभट्ट के वहाँ जन्म हुआ था। और ये गुप्त मौर्य का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का वो सुनहरा, गुप्त साम्राज्य था उस वक्त, गुप्त साम्राज्य का वो सुनहरा दौर कहा जाता है, इसीलिए सकाफ़ती लिहाज से भी अहम है। सकाफ़ती का मतलब सांस्कृतिक लिहाज से। ये जगह कदीम का मतलब पुराना, ये जगह कदीम दौर में तालीम और इल्म का मरकज़ समझा जाता था। इल्म का मरकज़ समझा जाता था कब? कदीम दौर में, पुराने ज़माने में इस जगह को यानी त्रिगना को इल्म का मरकज़ समझा जाता था। मरकज़ का मतलब होता है सेंटर समझा जाता था। इसीलिए जो यहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय है, जो आप लोग जानते हैं नालंदा जो विश्वविद्यालय हमारे प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा वो है, तो वो भी त्रिगना के पास में एक जगह है, पटना के पास में राजगीर, नालंदा में ये बना हुआ है। तो यहाँ पे मरकज़ बना हुआ था, यानी जो पटना का इलाका, आसपास का जो इलाका था कदीम दौर में, वो तालीम और इल्म का मरकज़ था, यानी लोग इल्म हासिल करने के लिए वहाँ आते थे। त्रिगना पटना के जुनूब में वाक़ और एक कुदरती हसीन इलाका है, यानी पटना के जुनूब में यानी वाक़ है और एक कुदरती तौर पर हसीन इलाका है, मतलब बहुत ही खूबसूरत वो इलाका है जहाँ पे आप घूमने के लिए आ सकते हैं। सवाल नंबर 4, क्या सूरज ग्रहण को नंगी आँख से देख सकते हैं? नंगी का मतलब कि जैसे साफ़ सुथरी आँख, जैसे अभी सबकी आँखें हैं या उसमें ग्लासेस लगाने के बाद वो आँखें नंगी नहीं रहती है। नंगी आँख का मतलब खुली आँख से देख सकते हैं। अगर नहीं तो क्यों? अगर नहीं देख सकते तो क्यों नहीं देख सकते? नहीं देख सकते, इसका जवाब हो गया कि नहीं देख सकते। सूरज ग्रहण को नंगी आँख से देखना ख़तरनाक है। क्या है? ख़तरनाक है, डेंजरस है। क्योंकि सूरज की तेज़ शाएँ का मतलब किरणें, शाएँ आँखों के रेटिना किसको बोलते हैं? रेटिना आँखों के अंदर का एक हिस्सा होता है जो चीज़ों को, यानी जो चीज़ हम देखते हैं उस देखने की जो
مطلب اس کو دیکھنے کے بعد دماغ تک جو پہنچاتا ہے اسی کو ریٹینا کہا جاتا ہے، کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تیز شعاعیں پڑتی ہیں نا، جب تیز شعاعیں پڑتی ہیں تو ریٹینا کو نقصان ہوگا، تو اس سے آپ کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ بینائی کا مطلب جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے خاص فلٹر والے چشمے یا محفوظ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی فلٹر والا چشمہ ہو جو آپ کی کرنوں سے محفوظ رکھے، یا کوئی ایسا طریقہ جو آپ کی آنکھوں کو محفوظ رکھے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سوال کیا ہوا کہ کیا سورج گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ تو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ تیز شعاعیں پڑنے سے ریٹینا کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، 2009 عیسوی میں سورج کو گرہن کی اہمیت بیان کیجیے۔ سوال نمبر 5، 2009 عیسوی کا سورج گرہن خاص اہمیت کا حامل تھا۔ خاص اہمیت کا حامل تھا مطلب بہت ہی مہتوپورن تھا، کیونکہ یہ 21ویں صدی ابھی 21ویں صدی چل رہی ہے نا، 21ویں صدی کا سب سے طویل یعنی سب سے لمبا مکمل سورج گرہن تھا۔ یعنی اس سے پہلے جو تھا ابھی تک کوئی مکمل سورج نہیں، آدھا سورج یا اس کا 75 وغیرہ، لیکن مکمل طریقے سے سورج غائب ہو چکا تھا۔ اور میں اس کا آنکھوں چشمدید گواہ ہوں، میں نے خود اس چیز کو فیل کیا تھا۔ میں اس وقت ہاسٹل میں پڑھتا تھا تو یہ حادثہ ہوا تھا، اس میں چھوٹا تھا۔ گرہن لگا تھا جو تقریباً 6 منٹ کا تھا اور 39 سیکنڈ تک جاری رہا تھا۔ یہ جو ٹائمنگ تھا نا اس کا یاد رکھیے گا، 6 منٹ 39 سیکنڈ تک جاری رہا تھا۔ یہ گرہن ایشیا بحر الکاہل کا مطلب ہوتا ہے پرشانت مہاساگر۔ بحر الکاہل کا کیا مطلب ہے؟ پرشانت مہاساگر، اور بھارت سمیت کئی ممالک میں دیکھا گیا تھا۔ ملک کی جمع ہے ممالک، ملک کی جمع کیا ہے؟ ممالک میں دیکھا گیا تھا۔ اس نے سائنسی تحقیق یعنی جو سائنس میں جو ریسرچ کرتے ہیں، جو فلکیات یعنی جو آسمانوں کا جو مشاہدہ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع فراہم ہوا۔ یعنی جو یہ حادثہ ہوا 6 منٹ 39 سیکنڈ کا، اس سے کیا ہوا کہ جو ریسرچ اسکالر تھے، جو ریسرچ کرتے تھے اوپر آسمانوں کے بارے میں، تو ان کے لیے ایک ہنٹ مل گیا، ان کو ریسرچ کرنے کا ایک آلہ مل گیا، ایک ذریعہ مل گیا۔ سوال نمبر، اب یہ آپ کا جو ہے وہ آج کا آخری چیپٹر ہے۔ سوال نمبر 1 ہے اس میں، اور فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو میں سے یہ سوال اخذ ہیں، یہ سوال لیے گئے ہیں، اسی کے مختصر سوالات ہیں۔ نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کیونکہ فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی جو گفتگو ہے، یہ اس کے رائٹر کون ہے؟ نذیر احمد ہے۔ یہاں تک جو سلسلہ تھا وہ مضمون کا تھا۔ پہلے ہم لوگوں نے حمد پڑھا، پھر افسانہ کو جانا، پھر مضمون کو پڑھا۔ مضمون یہاں تک ختم ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے ہم لوگ ناول کی سرزمین پہ ہیں، یعنی ناول پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو ناول نگار ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کو ہی کہا گیا ہے۔ اردو کا سب سے پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ تو نذیر احمد 1836 میں بجنور میں افضل گڑھ ایک جگہ ہے، افضل گڑھ ایک جگہ کا نام ہے، وہیں پہ گاؤں کا نام ہے، وہیں پہ بجنور ایک ڈسٹرکٹ ہے، اسی اتر پردیش میں ہے۔ یہ بھارت کے اتر پردیش میں افضل گڑھ کے ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ کب؟ 1836 میں۔ سوال نمبر 2، نذیر احمد کی کسی 2 ناول کے نام لکھنا ہے۔ میرات العروس جو اردو ناول، اگر آپ کو سوال آئے کہ اردو کا سب سے پہلا ناول کون ہے تو میرات العروس ہی ہے، اور ان کو لکھنے والے کون ہیں تو نذیر احمد ہیں۔ اس کے بعد آیا بنات النعش، یہ بھی ایک دونوں ناول ہے۔ اس کے بعد سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 3، فہمیدہ اور حمیدہ نصوح کی کون تھی؟ نصوح جو کردار تھا اس کی وہ کون تھی؟ فہمیدہ اور حمیدہ نذیر احمد کے مشہور ناول میرات العروس کے کردار ہیں، اور دونوں بہنیں ہیں۔ کیا ہیں؟ دونوں بہنیں ہیں۔ نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ اس کو جو ناول نذیر احمد نے جو ناول لکھنا شروع کیا، اس سب سے اہم وجہ تھی عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ نذیر احمد نے خاص طور پر خواتین یعنی عورت، خاتون کی جمع خواتین اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے۔
تعلیم و تربیت کا مطلب संस्कार देने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए, उसके अंदर संस्कार को बढ़ावा देने के लिए. सवाल नंबर 5, ज़ेर निसाब नावल के इक़्तिबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए. 2 किरदारों के नाम लिखिए. तो सबसे एक है फहमीदा और एक है हमीदा. नुसूह भी आपका हो सकता है. सवाल नंबर 6, नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखना है आपको. नज़ीर अहमद उर्दू के मशहूर नावल निगार और मुसले हैं. मुसले का मतलब जो कौम की इस्लाह करते हैं. क्या करते हैं? कौम की इस्लाह. कौम की इस्लाह, जो कौम को अच्छा रास्ता दिखाते हैं उसको मुसलह कहा जाता है. फिर दूसरा है आपका, दूसरा जुमला है उनकी पैदाइश 1836 बिजनौर में हुई थी. तीसरा जुमला है वो सर सैयद तहरीक यानी सर सैयद आंदोलन, तहरीक का मतलब आंदोलन के अहम रुकन थे, यानी बहुत ही अहम पार्टिसिपेंट थे, बहुत. जदीद तालीमी, जदीद का मतलब आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के जो नज़रियात हैं उस पर उसके वो हामी थे, यानी उसके वो बढ़ावा देने वाले थे. सर सैयद अहमद ख़ान यही चाहते थे कि जो मुस्लिम समुदाय है वो जदीद तालीम की तरफ आए, यानी आधुनिक शिक्षा की ओर अपना कदम आगे बढ़ाए. तो इसके जो नज़रियात हैं, यानी जो सर सैयद की जो इस चीज़ को मानते थे, इसी चीज़ को डिप्टी नज़ीर अहमद भी बहुत ही मानते थे. वो भी चाहते थे कि हमारा जो मुस्लिम समुदाय है वो जदीद तालीम की तरफ आए. सवाल चौथा जुमला, उन्होंने मिरतुल उरूस और बनातुन नाश जैसे अहम नावल लिखे. उनके नावलों का मकसद अखलाक़ी तरबियत, अखलाक़ी मतलब संस्कृत, अखलाक़ी मतलब ये होता है कि संस्कार को बढ़ावा देना और सामाजिक सुधार के लिए. समाजी इस्लाह का मतलब सामाजिक सुधार के लिए. सवाल नंबर 7, फहमीदा के किरदार पर रोशनी डालिए. फहमीदा के जो किरदार हैं वो क्या हैं? तो फहमीदा मिरतुल उरूस का एक होशियार, क्या है? एक होशियार, तालीम याफ्ता यानी पढ़ी लिखी, ज़िम्मेदार लड़की है. वो बहुत मुहज़्ज़ब, यानी उसके अंदर जो है वो संस्कार भरे पड़े हैं, उसके लिए मुहज़्ज़ब शब्द का इस्तेमाल होता है. और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का ख़याल रखती है. पढ़ी लिखी है, समझदार है, ज़िम्मेदार है, उसके अंदर संस्कार भी हैं और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का वो ख़याल भी रखती है. उसका किरदार ख़वातीन के लिए यानी औरतों के लिए एक अच्छा मिसाल है. सवाल नंबर 8, उर्दू के किसी 5 नावल के नाम लिखना है. किसी 5 नावल का नाम लिखना है. मैंने नावल निगार का भी नाम लिख दिया है ताकि याद करने में आपको आसानी हो. नावल निगार का नाम, हर किसी का नावल है और उनके साथ उनके नावल निगार का भी नाम है. जैसे मिरतुल उरूस नज़ीर अहमद, इब्नुल वक्त नज़ीर अहमद, बनातुन नश मैंने अभी आपको बताया था. इसके अलावा इब्नुल वक्त भी आप याद कर लीजिएगा. इब्नुल वक्त यानी नज़ीर अहमद. उमराओ जान अदा, मिर्ज़ा हादी रुस्वा इसके राइटर हैं. आग का दरिया, उमराओ जान अदा पे तो मूवीज़ भी बन चुकी हैं, आप चाहो तो देख सकते हो. उमराओ जान अदा जो ये मूवी है, वो फिल्म है, इसको आप देख लीजिए, इसका पूरा कैरेक्टर आपके सामने आ जाएगा. मिर्ज़ा हादी रुस्वा इसके राइटर हैं. आग का दरिया, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, खुदा की बस्ती, शौकत सिद्दीक़ी, ये इनके तमाम के ये नाम हैं, नावल के नाम हैं. मिरतुल उरूस, इब्नुल वक्त, उमराओ जान अदा, आग का दरिया, खुदा की बस्ती और उनके साथ उनके नावल निगार के भी नाम हैं. और ये आज का आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल से पहले आपसे छोटा सा अपील, आपसे छोटा सा गुजारिश कि एक लाइक कीजिए, लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को. अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर ये जो नोट्स हैं वो आपको मिले तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. 8969411881 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऑफिशियल ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10th कर रहे हैं तो आपको 11th में मेरी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर, क्योंकि मैं मुकम्मल 11th 12th का जो उर्दू का जो सिलेबस है इसी चैनल में कवर करूँगा इंशाअल्लाह. तो इसीलिए आप इसके ऑफिशियल ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएँ. चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं. सर सैयद के अनासिर खमसा की हैसियत से नज़ीर अहमद की खिदमात पर रोशनी डालिए. अब अनासिर खमसा का क्या मतलब है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. जिनको बताएंगे तो उनका नाम जो है वो
उनका नाम जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उनका नाम वीडियो में लिया जाएगा अगर आप अपना जवाब देते हैं तो, यानी अनासिर खमसा किसको कहा जाता है। अगर आपके अगर आपके कमेंट में 100 लाइक्स आ जाते हैं, 100 लाइक्स आ जाते हैं तो आपके लिए एक गिव अवे भी होगा। गिव अवे का मतलब एक इनाम भी आपको पोस्ट कर दिया ज़रूर जाएगा अगर आपके कमेंट में 100 लाइक होते हैं तो। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको शॉर्ट आउट लिया जाएगा, अगर आपके कमेंट में 100 लाइक्स आ जाते हैं तो आपको गिव अवे भी मिलेगा। सर सैयद के अनासिर खमसा की हैसियत से नज़ीर अहमद की खिदमात पर रोशनी डालिए, क्योंकि जो सोच सर सैयद की थी वही सोच डिप्टी नज़ीर अहमद की थी। नज़ीर अहमद सर सैयद तहरीक यानी सर सैयद आंदोलन के अहम रुकन थे, महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उनकी खिदमात, उनका जो खिदमात है यानी सहयोग है तालीम के प्रति, उनका जो बलिदान है तालीम के प्रति, सामाजिक सुधार के प्रति, ख़वातीन की कामयाबी के प्रति यानी ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद से, यानी जो औरतें हैं उनकी कामयाबी से जुड़ी हुई थी। यानी उनका जो नज़ीर अहमद जो सर सैयद अहमद के रुकन थे और उनकी खिदमात किस थी, तालीम थी, सामाजिक सुधार था, ख़वातीन की कामयाबी थी, उससे जुड़ी हुई थी। उन्होंने अपने नावलों में नज़ीर अहमद ने अपने नावलों में, नावल को उपन्यास कहा जाता है हिंदी में, उपन्यास, यानी अपने उपन्यासों के माध्यम से शैक्षिक जागरूकता, तालीमी बेदारी मतलब शैक्षिक जागरूकता पैदा की और मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम समाज का मतलब मुस्लिम समुदाय में जदीद यानी आधुनिक, नया आधुनिक सोच को बढ़ावा दिया। फ़रोग़ देने का मतलब बढ़ावा देना, आधुनिक सोच को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने नावलों के ज़रिए तालीमी बेदारी पैदा की और मुस्लिम समाज में जदीद सोच को फ़रोग़ दिया। उनके कामों ने सर सैयद की तालीमी मिशन को आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। जैसे सर सैयद ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक अजीम सरमाया हमें मिला है, उसकी जो सर सैयद उनके राह रुवा थे, यानी सबसे आगे तो थे लेकिन इनके पशे पुश्त बहुत सारे ऐसे उपन्यास लेख थे, उपन्यास राइटर्स थे, नावल निगार थे और भी बहुत सारे लोग थे जो इनकी सोच के साथ अपना कदम से कदम मिलाया और आज सर सैयद की जो तहरीक है, जो आंदोलन है, वो आज हमारे सिलेबस का हिस्सा हो गया। तो यहाँ तक का आज का सफ़र था हमारा। अब ये तमाम सवालात आपको याद कर लेने हैं। अगर आपने याद कर लिया है तो इसको रिवीज़न पे रिवीज़न करना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।